Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. Hope all of you are doing well with your preparation. This is a video on daily topic wise news analysis where we cover the news from two important newspapers, that is the Hindu and Indian Express. तो इन दोनों न्यूज़पेपर से जो भी न्यूज़ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी उसको डिस्कस करेंगे. So let's start with the topic first. So these are the list of the topic for the day. Today is 1st of October. And the topics are understanding coronavirus mutation. This is a very important news with regards to your prelims and mains examination. Now the second topic is regarding the crime against the scheduled tribe report. This is the NCRB report which is there. Now the third is government borrowing plan. This is the third topic. The fourth topic is changing healthcare behavior. And the last topic is education, labor and agriculture reform. So these are all the 5 important topics or articles that has been reported in both of the newspaper. Apart from this, we'll have some MCQs question at the end of this video. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus on the YouTube because we have lot more compilation videos, informative videos on YouTube channel. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up. So the first we start, there's an update regarding the UPSC, basically those who are appearing for civil services prelims examination. So important news that you must know because the Supreme Court has refused to extend the date of examination, which like UPSC already has declared that they won't be postponing the examination, but because of the some of the petition which was filed in the Supreme Court, उसको लेकर के Supreme Court ने clarify कर दिया कि date आगे नहीं बढ़ेगी. So all the student out there who will be appearing for this year, make sure everything is clear, crystal clear to your mind. I must understand, I do admit that आप लोगों के कई मन में जहन में ये सवाल थी कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड होंगी क्या होंगे, बट अब आप एकदम क्लियर हो जाओ, एग्जाम होने वाली है. जस्ट चिल, रिलैक्स, जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं जस्ट गो थ्रू इट और एक दिन पहले एकदम कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाओ. राइट, विल मेक श्योर कि एक वीडियो भी मैं आपको इसके लिए बनाऊं ताकि आपको कुछ और बूस्ट मिले उस पर. तो अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. सो दिस इज़ द फाइनल आर्ग्यूमेंट सबमिशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट दैट दे वोंट बी पोस्टपोनिंग द एग्जामिनेशन बिकॉज कैलेंडर को लेकर के कंस्ट्रेन है. यूपीएससी हर बार एनुअल कैलेंडर देती है हर साल एग्जाम से पहले, तो इसमें अगर कुछ आगे पीछे किया जाए तो पूरी कैलेंडर सारे एग्जामिनेशन में डिस्टॉर्शन आएगी और सारे एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने में दिक्कत हो सकती है. So this is an update for all the aspirants who will be appearing for this year prelims examination. Now coming to the today's news, this is regarding the understanding coronavirus mutation. This you can find in the Indian Express explained page. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोरोना वायरस के. आपने अभी तक न्यूज़ पढ़े हैं कि कैसे वायरस फैल रहा है, क्या बचाव है, बट म्यूटेशन विच इज़ समथिंग एज अनदर स्टेज, अनदर लेवल, राइट. तो ये आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो कोरोना वायरस जो SARS-CoV-2 के नाम से भी जानते हैं इज़ कॉन्स्टेंटली मल्टीप्लाइंग और बेसिकली जो म्यूटेटिंग और मल्टीप्लाइंग ऑफ सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो लेमन टर्म्स में. तो म्यूटेशन जो पाया गया है वो रिसर्चर ने बहुत अपोर्डेंस पाया है, बहुत लेवल पे कैटेगरी है उसकी. म्यूटेशन का नाम के बता दूं आपको, D614G, राइट. दिस इज द टाइप ऑफ म्यूटेशन दैट हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड दिस इज ट्रांसफरेबल, राइट. ट्रांसमिशन जो है इट्स मोर देन अदर. तो क्या है ये, इसके बारे में एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा. तो व्हाट इज D614G, किस तरह के म्यूटेशंस होते हैं, क्या होते हैं इसमें. तो ये एक ऐसी टॉपिक है जो आपके प्रीलिम्स के लिए एनी डे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. तो जितने भी वायरसेस हैं जो म्यूटेट करते हैं उनके कुछ बैरियर्स हैं. वो बेसिकली होता है क्या, जो आरएनए के वायरस होते हैं, जो SARS-CoV के जो वायरस हैं दैट इज़ अ आरएनए बोर्न वायरस, राइट. तो वो स्लोली म्यूटेट करती थी एंड इट रिक्वायर द ह्यूमन होस्ट इन ऑर्डर टू रेप्लिकेट. जो वायरस की कैरेक्टर होती है, आप में से जिन लोगों ने बेसिक बायोलॉजी क्लास 10 तक पढ़ा है दे मस्ट बी अवेयर कि वायरस नीड अ होस्ट टू मल्टीप्लाई और कम इन टू द एक्शन. बाकी इन्वायरमेंट में इट्स कम्प्लीटली डेड, राइट. एंड इन दिस म्यूटेशन जो हमारी D614G है, इसमें क्या हो रही है, जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन रिप्लेस हो जा रही है किससे, एस्पार्टिक एसिड जिसको D कहते हैं. तो जब भी जो म्यूटेशन होती है तो जो चीज़ें रिप्लेस होती है उसको वहाँ पे मेंशन किया जाता है, राइट. तो क्या हो रहा है, जो ग्लाइसिन है दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय एस्पार्टिक एसिड इन द 614th पोजीशन. 614वें स्थान पे उसको चेंजेस हो रही है अमीनो एसिड्स में. दिस इज कॉल्ड द म्यूटेशन. मतलब म्यूटेशन मतलब चेंज, इधर की चीज़ उधर होना. मैं आपको सिंपल टर्म में बताने की कोशिश कर रहा हूँ.
Now hence the mutation come into be referred as D614G. इसी वजह से जो ग्लाइसिन है यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड है 614 लेवल पे उसकी चेंजेस आ रही है, राइट। बताया ये गया है अभी तक में लाइक 12,000 म्यूटेशन हैज बीन डॉक्यूमेंटेड ओवर 3.2 करोड़ केसेस ग्लोबली। दिस इज ग्लोबल रिकॉर्ड, नॉट ओनली फॉर इंडिया स्पेसिफिकली, पूरे विश्व में ग्लोबली। नाउ म्यूटेशन जो है दैट हैज बीन फाउंड वाइड स्प्रेड और इट वॉज नोटिस्ड फर्स्ट इन चाइना और जर्मनी। इन दो कंट्रीज में सबसे पहले ये म्यूटेशंस पाई गई थी, जो D614G की म्यूटेशंस है, दैट वाज फर्स्ट विटनेस देयर। उसके बाद इट हैज एक्सपैंडेड टू यूरोप, इवेंचुअली इट्स लैंडेड टू USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड इनफैक्ट केसेस आर ऑल्सो रिपोर्टेड इन इंडिया। तो इंडिया के बारे में स्पेसिफिकली मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। Now coming to the what make this mutation unlike others, कैसे ये दूसरे म्यूटेशन से अलग है, इसके लिए हुआ क्या, इस चीज़ को समझने के लिए वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हाउ SARS-CoV-2 इंटर्स इन द ह्यूमन सेल। होती क्या है, जो अमीनो एसिड्स हैं वो व्हेन म्यूटेशन अकर दे आर लोकेटेड इन द स्पाइक प्रोटीन ऑफ द वायरस। जो वायरस की जो स्पाइक प्रोटीन होती है उस पर अटैच्ड होती है, राइट। एंड दीज स्पाइक प्रोटीन बाइंड विथ AEC2 रिसेप्टर्स ऑन द ह्यूमन सेल एंड गेन एंट्री। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर यू एज एन एस्पिरेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आपको छोटे छोटे चीज़ याद रखना है कि जो रिसेप्टर से चीज़ें बाइंड होती है। इफ़ यू फॉरगेट दिस नेम कोई बात नहीं, रिसेप्टर आप याद रखना। एंड ह्यूमन सेल के थ्रू ये एंट्री होती है, स्पाइक प्रोटीन में बाइंड करती है, राइट। सो स्पाइक प्रोटीन इज समथिंग विच वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ कमिंग टू द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस, जो म्यूटेशन चल रही है उसकी क्या इम्प्लीकेशंस है। देखो जो वायरस म्यूटेट कर रही है, राइट, सो द वायरस म्यूटेट एवरी टाइम इट रेप्लिकेट्स इन द ह्यूमन सेल एंड अडेप्ट टू सर्वाइव। तो क्या होता है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत हाई है, नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स से मल्टीप्लाई करती है ये भी रिकॉर्ड्स में अभी तक साइंटिस्ट ने बताया नहीं है। एंड दिस म्यूटेशन हेल्प इन वायरस टू डू एग्जैक्टली दैट, राइट। एक पेपर प्रिंट हुई थी, प्री पेपर प्रिंट हुई थी, जिसको मेड्रिक्स नाम की एक वो उन्होंने रिसर्च पेपर दिया है, जहाँ पे पाया ये गया है कि इट हैज सिग्निफिकेंटली हाई वायरस लोड इन द नेजोफेलिक एंड डायग्नोस्टिक्स एरिया। जो बेसिकली जो हमारे नेजोफेगल्स एरियाज हैं उनमें इनका सबसे ज़्यादा म्यूटेशन देखा गया। इस वजह से जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको ये भी कहा जाता है कि दे आर एडवाइजेबल टू टेक वार्म वाटर, लाइक मोर देन ल्यूकवार्म वाटर, वो वार्म वाटर पिए ताकि जो नेजोफेगल एरियाज हैं उनमें जो वायरस अगर कोई चिपके हुए हैं गले पे तो वापस वो नीचे इंटेस्टाइन के थ्रू अगर निकलना हो तो दे कैन वाइट आउट थ्रू द एक्सक्रीशंस, राइट। एंड अर्लियर दिस मार्च द म्यूटेशन वॉज बोर्न गेनिंग द डोमिनेंस इन द यूरोप। यूरोप में सबसे ज़्यादा जो ये टाइप की जो म्यूटेशन है D614G की जो म्यूटेशन वो सबसे ज़्यादा यूरोप में पाई गई है, राइट। नाउ इज इट प्रेवलेंट इन इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया कुछ कुछ केसेस इंडिया में भी रिपोर्ट किए गए हैं। तो लैंसेट, वन ऑफ द रेपुटेड मेडिकल जर्नल अक्रॉस द वर्ल्ड, उन्होंने कहा है कि जो प्री प्रिंट है कोविड-19 री इन्फेक्शंस की, वो 4 हेल्थ वर्कर्स मुंबई में पाए गए थे। द 4 केसेस हैज बीन रिपोर्टेड। सो द स्टडी बाय द कस्तूरबा हॉस्पिटल, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी और CSR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी ने पाया, दे हैव फाउंड कि G614G के म्यूटेशन है इंडिया में भी, राइट। और इसमें से एक डॉक्टर है, वो जो डॉक्टर ही वॉज अगेन री इन्फेक्टेड और री इन्फेक्शन में इट वॉज फाउंड कि जो D614G की जो म्यूटेशन है वो प्रेजेंट है। एंड ही डेवलप्ड द सिम्टम्स एंड रिक्वायर्ड द प्लाज्मा थेरेपी, राइट। ऑल्दो प्लाज्मा थेरेपी बाद में बहुत सारी चीज़ें इसमें सही नहीं हो पाई हैं, लेकिन स्टिल इट इज़ वर्किंग। ICMR ने कहा है कि प्लाज्मा और सेरो प्रेवलेंस को अभी भी वी कैन नॉट टेक एज अ स्केप रूट, बट लेट्स सी हाउ थिंग्स वुड गो, बिकॉज स्टिल इट्स अ टाइम कि जो प्लाज्मा थेरेपी है दैट वुड बी द सॉल्यूशन आउट, राइट। नाउ इज इट लाइक इट इज़ अ वैक्सीनेशन टारगेट, किस तरह से इसको वैक्सीनेशन के थ्रू किया जा सकता है, बिकॉज स्टिल वी डू नॉट हैव अ वैक्सीन फॉर द नॉर्मल म्यूटेशन। तो फाइजर जो कंपनी है, बहुत बड़ी फर्म है ये, ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग है US की, तो दे आर वर्किंग ऑन द वैक्सीन कैंडिडेट। जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो रिसेप्टर्स बाइंडिंग डोमेन, जो मैंने आपको कहा प्रोटीन में जो बाइंड करती है रिसेप्टर्स को, उसको कैसे रोका जा सके। एंड द जर्मनी जो बेसिकली जो वैक्सीन की जो ट्रायल जर्मनी में चल रही है, दे हैव सॉन सम प्रॉमिसिंग रिजल्ट रिगार्डिंग द D614 स्ट्रेन्स, राइट। और अबंडेंस रिसर्च इस पे चल रहे हैं, स्टडीज स्टिल ऑन द मैकेनिज्म कि किस तरह से इस म्यूटेशन को स्पेसिफिकली टारगेट किया जाए और इसको फैलने से रोका जा सके, राइट। सो दिस इज विथ रिगार्ड्स टू द वैक्सीनेशंस। नाउ कमिंग टू द अदर टॉपिक फ्रॉम द हिंदू,
crime against the scheduled tribe. This is a report by NCRB, right? So the National Crime Record Bureau has given some record like what was the crime. So इस तरह के जो सवाल हैं वो आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 4 खास करके जो केस स्टडीज़ के पेपर होते हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एंड जनरल स्टडीज़ पेपर 2, राइट. फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस वुड वॉट बी दैट इंपॉर्टेंट. तो प्रीलिम्स में कुछ सवाल यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे बट मेंस में इंपॉर्टेंट है ये. तो अभी रीसेंट एनुअल रिपोर्ट जो आई है क्राइम जिसको बोलते हैं रीसेंट एनुअल क्राइम रिपोर्ट इन इंडिया, जो कि पब्लिश की जाती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो. सो दे हैव सेड कि जो क्राइम बढ़ी है अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इट हैज सीन लाइक फ्रॉम 7% to 26%. दिस इज द इंक्रीजमेंट. 2018 की जो फिगर थी उसमें 7% के आसपास डेटा थी, बट एट प्रेजेंट 2019 में दिस हैज इंक्रीज टू 26%. सो एन इंक्रीज ओवर a lot of increasement had been seen. Total number of 45,935 cases were registered against SC, and increasing of 7.3 over the 2018, where 42793 cases were recorded, right? 42,793. आपको ये numbers याद करने की ज़रूरत नहीं है. I just wanted to tell you कि किस तरह से chronology चल रही है, आप इसको समझ लें. Now state wise crime records की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश has recorded the highest number of crime against the SC in 2019, followed by the cases in Rajasthan, Bihar, right? ये 3 states आपको याद रखने हैं. The first is उत्तर प्रदेश, second is Rajasthan, and third is Bihar, right? Now rape cases की अगर बात करें so in SC Rajasthan has topped the rank, followed by उत्तर प्रदेश and मध्य प्रदेश, right? और जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं अगेन एसटी दैट हैज़ अगेन इंक्रीज्ड. मध्य प्रदेश ने पूरे स्टेट में दे हैव रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ केस अगेंस्ट द एसटी. उसके बाद दिस इज फॉलोड बाय राजस्थान एंड उड़ीसा. एंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंसिडेंट ऑफ द रेप फॉर द ट्राइबल वुमेन वाज रजिस्टर्ड इन द मध्य प्रदेश. सो दिस वुड हेल्प यू टू कोट इन द बेसिकली जो जनरल स्टडीज़ का जो पेपर 4 है केस स्टडीज़ में अगर आप लिखेंगे तो यू कैन कोट दिस रिपोर्ट्स बिकॉज दिस आर सम ऑफ द रिपोर्ट कमिंग फ्रॉम द ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट. Now the third topic is government borrowing plan. This is important for your general studies paper 3, and some part and pieces can be again relevant for the prelims examination, right? तो इंडिया की जो फिजिकल डेफिसिट है दैट हैज़ इंक्रीज टू 109%. जो बजट की टारगेट्स थी पिछले आने वाले 5 महीने में कोविड-19 के बाद, तो रेवेन्यूज वाज अगेन म्यूटेड क्योंकि फाइनेंसिंग को लेकर के गवर्नमेंट ने कहा था कि वो अपने एक्सपेंसेस को आगे बढ़ाएंगे, जो बोरोइंग कैपेसिटी है उसको आगे लेकर के जाएंगे. पहले 4 लाख करोड़ रुपीस के आसपास की एलोकेशन अलाउ की गई थी, बट इज एन इंक्रीज टू 12 लाख करोड़ रुपीस ऑफ द बोरोइंग. द फाइनेंशियल मिनिस्टर हैज सेड, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, दे सेड कि एक्सपेंडिचर जो है उसके जो कमिटमेंट होंगे इस साल तक बढ़ेंगे, और नेक्स्ट ईयर प्रॉब्ली होगा क्या कि जो चीज़ें हैं दे वुड कंपनसेटिंग विद अदर स्टफ, राइट. तो इंक्रीज इन बोरोइंग की अगर बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ने कहा था कि 4.2 लाख करोड़ रुपीस वुड बी देयर, बट इट हैज़ इंक्रीज टू 12 लाख करोड़ रुपीस, राइट. और इनिशियली एडवर्स इम्पैक्ट जो है कोविड-19 के उसको देखते हुए पेंडेमिक एंड जो नेशनल लॉकडाउन हुई थी, जितने भी सारे सेक्टर्स में जो जी एक्सक्लेशंस हुई है, जो ग्रोथ पूरी तरह से माइनस में चली गई है, उसको इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने बोरोइंग का एक ऑप्शन लिया. And government is leaving some room for the states also, they can also borrow with the private players, but again if they want they can raise money in the second half of the years, right. Deficit trends की अगर बात करें तो जो रेटिंग एजेंसीज हैं they are expected to have the physical deficit with regards to the higher जो जितने भी मंथ एंड में या ईयर एंड में जो कैलकुलेशंस होंगी उनके डेफिसिट ट्रेंड को, उसकी एक आप वो बना सकते हैं. दे कैन मेंटेन देयर चार्ट शीट. उसके बाद the revenue collection is finally blamed to the fiscal deficit hitting 8.6 lakh compared to the last 7.97 करोड़ रुपीज़. ये जो टैक्स रेवेन्यू की जो डिक्लाइन है उसके बारे में आप देख सकते हैं. एंड बजट में ये चीज़ें बताई गई थी कि जो फिजिकल डेफिसिट है दैट वुड बी ओनली 3.5% ऑफ द जीडीपी, बट इससे तो कई ज़्यादा ऊपर चली गई है. जो टारगेट्स थी दैट आर नॉट बी मेंटेन्ड. Now coming to the other editorial, that is changing the health behavior. This is again important one because this talks about the behavioral change जो कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे में पिछले बार के एडिशंस में थी. behavioral change कैसे किया जाए, किस तरह से behavior change को प्रमोट किया जाए. So this is important for your general studies paper 2.
सो द रोल ऑफ हेल्थ बिहेवियर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं लाइक आर डाइट, फिजिकल एक्टिविटीज़, स्लीप, स्मोकिंग, सब्सटेंस यूज़, और ये सारी चीज़ें जो हैं एक पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड एट द टाइम व्हेन वी आर फेसिंग द पेंडेमिक, राइट? सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अल्टरिंग द हेल्थ बिहेवियर lies with the individual. So this would be the sole responsibility of the individual to act diligently and to act seriously, right? So this demonstrates the failure of the public health, internalizing the knowledge about the social origin and the human behaviors. कैसे आपको behave करना है, किस तरह से चीज़ों के लिए act करना, what are the precautionary measures that you're gonna take. So everything has to come from the individual end. नाउ आइडेंटिफाइंग द रिस्क सेक्शन की अगर बात करें तो वैसे लोग बेसिकली जो कि रिस्क ग्रुप में सबसे ज़्यादा हैं उनको पहले आइडेंटिफाई किया जाए, और जो स्क्रीनिंग है दैट शुड बी देयर, इट बिकम एफिशिएंट व्हेन द हाई रिस्क ग्रुप आर आइडेंटिफाइड, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या फिर वैसे पेशेंट्स हो, चाहे वो बेसिकली टीबी के पेशेंट्स हों या फिर डायबिटिक्स पेशेंट्स हो, इन सारे लोगों को सर्वेलेंस में रखना. दिस वुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस दैट वी कैन डू, राइट? जो रिस्क ग्रुप हैं उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना. ना द पर्पस ऑफ द पब्लिक हेल्थ एक्शन क्या हो सकती है? सो प्राइमरी पर्पस है कि जो हेल्थ केयर एक्शन है दैट शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द एपिडेमिक, राइट? कोई भी डिजीज कम्युनिटी में ना फैले उसको कैसे रोका जा सकता है, और जो ओवर रिलायंस है टेस्टिंग लेबोरेटरीज की, हमें उससे भी बचने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज द टाइम वेयर हाई रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन इज देयर एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू लुक इनटू द बिहेवियर अमंग द पीपल. जो बिहेवियर चेंज है वो प्रमोट करने का भी सबसे अच्छा टाइम है. गवर्नमेंट इज ऑलरेडी ट्राइंग टू इम्पार्ट इट, चाहे वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, बट स्टिल दिस इज समथिंग विच एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एन इंडिविजुअल हैज़ टू बी इन्वॉल्व एंड दे हैव टू शो अ प्रोएक्टिव रोल, राइट? नाउ कैपेसिटी टू मॉडिफाई बिहेवियर, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है? तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं हेल्थ अवेयरनेस रिगार्डिंग द हेल्थ बिहेवियर, चाहे वो डॉक्टर्स हो, सोशल मीडिया के थ्रू हो, सेलिब्रिटीज़ हो, दे पीपल कैन इन्फ्लुएंस द behavior change, and many of who are the risk can be again fight and modified despite they are at the risk. जो behavior change है that can have a huge impact in the society. जो unhealthy practices हैं that can again be overcome. और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 को कुछ रिलैक्सेशन दी है. पुलिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको इंश्योर किया है कि जो हेल्थ बिहेवियर पैटर्न है दैट शुड बी इम्पार्टेड, दैट शुड बी टॉट ईदर फोर्सफुली समथिंग विच इंडिया में चीज़ें पॉसिबल नहीं है, बट अगेन दिस वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड अदर मेडिकल पर्सनल टू लेट पीपल अवेयर व्हाट एग्जैक्टली दे कैन डू एंड हाउ दे कैन सेव दिस इन्फेक्शंस, राइट? Now coming to the last topic, that is education, labor and agriculture reform. This is an editorial from the Indian Express. तो यहाँ पे 3 सेक्टर को लेकर के बात की गई किस तरह से एडुकेशन, लेबर और एग्रीकल्चर पे रिफॉर्म लाए जा सकते हैं. सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 2 and 3, राइट? तो एक बायोग्राफी के बारे में बात की गई है, दादा भाई नौरोजी के ऊपर जो बायोग्राफी लिखी गई थी जिसको धन्यार पटेल ने लिखा है. सो कुछ इंपॉर्टेंट जो डिसफंक्शंस हैं सोसाइटी में उसके बारे में बात की गई है. सो फर्स्ट इज लाइक एनी चेंज नीड्स एविडेंस. दादा भाई नौरोजी की जो ड्रेन थ्योरी है दैट वाज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट डेटा टू प्रूव द इंडियन एक्सप्लॉयटेशन. सेकंड चीज है दैट चेंज मस्ट बी बैलेंस. जो भी चेंज है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए. सो नौरोजी वॉज टू मॉडरेट ऑन द रेडिकल एंड टू रेडिकल फॉर द मॉडरेट्स, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Now finally, any change required openness because you can't stimulate or regret defends the status quo. So Dada Bhai Nauroji has become the more radical into the 8th century because he embarked the new ideas instead of retreating the safety for his old convictions. तो इसके अलावा जो 3 सेक्टर्स मैंने आपको बताया उनमें कैसे कैसे चीज़ों को वेलफेयर प्रमोट किया जा सकता है. तो प्रमोटिंग वेलफेयर, द फर्स्ट वुड बी डिलीवरिंग द इक्वालिटी एंड जस्टिस ड्रीम फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए सबसे पहले ज़रूरी है. पॉलिसी चेंज इज डिफिकल्ट क्योंकि जो इफेक्टिवनेस है दैट नीड टू बी ऑन द राइट बैलेंस विथ कन्विक्शन विथ लिसनिंग, राइट? तो ये कमिटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और जो 3 रिफॉर्म है, जो एजुकेशन, एग्रीकल्चर और लेबर, इन तीनों चीज़ों को सिंक्रोनाइजेशन में देखने की ज़रूरत है. दीज 3 थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, राइट? बिकॉज एम्प्लॉयमेंट poverty is bigger challenge than unemployment and farmer are not self employed but self exploited. जिस तरह से फार्म्स बिल भी अभी टेबल्ड हुई है दैट आर
अगेंस्ट द फार्मर विल, एज द फार्मर यूनियन कोटेड देम। एमएसपी को लेकर के काफ़ी इशूज़ है, ऑल्दो गवर्नमेंट ने उसको क्लैरिफाई किया है, बट स्टिल देयर आर सम हिडन इंटरेस्ट विच गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पोर्ट्रेट विद दिस 3 bills। नाउ बेनिफिशरीज ऑफ द रिफॉर्म्स की अगर बात करें, अगर इस तरह से जो रिफॉर्म्स होती है तो 3 सबसे बड़े जो बेनिफिशरीज होंगे, सो दे वुड बी द यूथ, फैक्ट्रीज, फार्मर्स, एमएसएमई एंड द वेज अर्नर्स, राइट। सो फार्मर विल गेट द शेयर इन द रिटेल प्राइस। जो नॉन फार्म लेबर्स ट्रांजिशन है उसमें फैक्ट्रीज में सर्विसेज इन्वॉल्व होगी, और जो एमएसएमई है, जो हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दैट डू नॉट हैव मार्जिन्स, मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो उनके खुद के एम्प्लॉयमेंट है, लेबर लॉज की कंप्लाइंसेज है, वो सारी चीज़ें लार्ज स्केल में भी उनको मैंडेटरी होती है करना। Now finally, only sustainable and scalable minimalizable way would be the paying human capital from the non-farm and job creations। तो आपने देखा होगा एमएसएमई जो कि 35% तक कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में, और बहुत, अगर मैं बात करूँ जितने नंबर्स ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन दिस, तो 40% एमएसएमई में लोग काफ़ी एम्प्लॉयड हैं, एंड दिस इज द सेक्टर विच हैज़ अ लॉट ऑफ पीपल वर्किंग। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, तो जॉब लॉसेस के बाद दिस सेक्टर वुड बी समथिंग विच अगेन हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल व्हेन इट्स कम टू क्रिएटिंग द जॉब। तो एमएसएमई को रिवाइव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स बताए गए हैं। तो एग्रीकल्चर लॉज में जिस तरह से इट्स नीदर बेसिकली लॉज वेयर नीदर प्रो फार्मर नॉर प्रो कंज्यूमर बट प्रो मिडिल मैन। इंडियन लेबर्स लॉ की बात करें तो इट वॉज नीदर प्रो लेबर नॉर प्रो एम्प्लॉयर बट इट वॉज प्रो इंस्पेक्टर। तो सरकार ने कहा था कि इंस्पेक्टर राज खत्म किया जाएगा, बट इट इज स्टिल कंटिन्यूड बिकॉज मेनी ऑफ द लेबर लॉज आर स्टिल नॉट इन प्लेस। एंड इंडियन एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो इट इज़ बीइंग आर्ग्यूड कि इट इज़ नॉट प्रो स्टूडेंट और प्रो एम्प्लॉयबिलिटी, बट इट इज़ प्रो अगेंस्ट यूजीसी, AICT and block institutions, right? So we have to take a note of it because in the coming decades, this is something that has to be renovated, and the regulation regarding all these 3 sectors would be very essential when it's come to the complete sustainable of the development of the economy, right? तो ये 3 चीज़ों पे काफ़ी हद तक काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। Now way forward की अगर बात करें, so the recent reform is substantive, followed by the civil services. These are the sectors where the reform would be needed: civil services, banking, compliances, decentralization, and urban reforms. Urban reforms means like infrastructure development, healthcare sectors. At the same time, we need to be complacent with the infrastructure development for the farmers. That would be the storage facilities, right? And over the decade, they have combined to raise the manufacturing employment from 11% to 18% and reduce the farm from 45% to 15% of the worker. And the women labor force participation should also be increased, जहाँ पे 25% है इसको बढ़ा करके 50% तक की टारगेट करनी चाहिए, चाहे वो मनरेगा हो, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो, एलीड एक्टिविटीज़ हो, MSME सेक्टर्स हो, जो भी सेक्टर्स हैं, वुमेन पार्टिसिपेशन हैज़ टू बी देयर सो दैट अल्टीमेटली दे गेट द चांस टू क्रिएट एंड शेयर देयर जो वर्कफोर्स में उनकी पार्टिसिपेशन, वहाँ जो रिप्रेजेंटेशन है वो इक्वल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. So this would be the way forward for all these articles. So this you can quote in the examination. Now moving ahead with the today's MCQs question of the day. So the first question is coming from the general science with reference to the hyperspecular imaging satellite that is called HISIS. Consider the following statement. It was launched by using the Polar Satellite Launch Vehicle, that is PSLV. PSLV has always been important for the examination. And the primary goal of the HISIS is to study the Earth's surface in the invisible, near infrared or short wave infrared region for the electromagnetic spectrum. So these are two important statements with regards to HISIS. So you have to consider both of the statement. If you have read, you must be easily able to understand this question and answer this. And if not, then you should read it because this is something which would be important for the examination. So do let us know how many of you know the correct answer and write your answer in the comment section down below. Coming to the second question for the modern history. The Wood Dispatch on education laid great stress on the need of female education, and the Christian missionaries were the first to be set up in the Calcutta Female Juvenile Society, right? So these are two separate statements which you have to consider, and you have read NCERT Spectrum, any book. This would be a cakewalk for you. You can write the answer in the comment section like A, B, C, D. And if you have any additional information regarding the Christian missionary or the Calcutta Female Juvenile Society Wood Dispatch, that also you can share with us in the comment section down below, right? So do write your answer and do participate.
And if you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.